Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to TKS online classes. I'm your teacher Miss Haram from TKS Senior Branch. Juma Mubarak to all of you. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग जुम्मे में हाजिर नहीं होते हैं उनके हक़ में इरादा करता हूँ कि हुक्म करो एक शख्स को जो लोगों को नमाज़ पढ़ाए, फिर मैं जला दूँ उन लोगों के घर जो जुम्मे को नहीं आते। बच्चे, जुमे की नमाज़ बजमात अदा करना मस्जिद में जाकर बहुत इसकी फ़ज़लियत अहमियत है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो लोग जुम्मे की नमाज़ मस्जिद में आके नहीं पढ़ते उसका बहुत सख्त गुनाह है, उनका दिल चाहता है कि वो उनके घर जला दें। तो बच्चे, जुम्मे की नमाज़ जो है बजमात अदा किया करें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। ओके, okay, I am first taking your attendance. Yes, Azan is present. Ali Abbas, Fatima Doll, Haseeb, Khushbaq, Muhammad Hadi, Manahil. Okay, Mirab, Muhammad Abbas, Muhammad Ahmad, Ummama, Rehan Gohar, Rehan Khan, Saif, Asif, Shayan. Words, yeah. Okay, words लिखा हुआ है। और Yazan and Zeba and Zareem. Okay, बच्चे, switch on your video. I want to see you. Your book should be in your hands. Good, Ahmad, Shayan, Rehan Gohar, good. Okay, words are Saif, Asif, yes, Zareem, good. Fatima Doll, yes, Haseeb, okay, good. Yes, Muhammad Adis, Umama, good. Okay, Ahmad, good बच्चे. Ali Abbas, Shabash, yes, Muhammad Abbas, Zeba, Shayan, I want to see your, yes, good, Shayan. Okay, Khushbaq, Meher and Mirab, I want to see your book बच्चे. Switch on your video. Manahil also and Musawwar Shah also. बच्चों, switch on your video. I want to see your book. Okay, before starting our new topic, first of all, about the food. Yes, yesterday we have studied about what? About food. So who will tell me the traditional dish of Punjab? Raise your hand. कौन मुझे बताएगा पंजाब की ट्रेडिशनल डिश? Yes, Fatima. Okay, yes, Fatima, unmute your mic. Walaikum assalam, good morning. Okay, बच्चे, tell me about the traditional dish of Punjab. Yes, Fatma, can you hear? Okay, good, Fatma. Okay, good, Fatma. Yes, Mirab, you will tell me. Yes, Mirab, you will tell me about the favorite food of Khyber Pakhtunkhwa. Yes, Mirab, unmute your mic. Yes. Yes, Mirab, tell me about the favorite food of Khyber Pakhtunkhwa. Chapli kebab. Yes, chapli kebab and yes. Okay. Only chapli kebab. Okay, chapli kebab. Good, Mirab. Okay, Rehan, you tell me the further. ठीक है, चपली कबाब है, इसके अलावा कौन कौन से हैं? Yes, Rehan, unmute your mic. चपली कबाब and Kabli pulao and shinwari tikka. very good, Rehan. Yes, kabli pulao, chapli kebab and shinwari tikka. Good, Rehan. Yes, Ali Abbas. Ali Abbas, you will tell me about the dish of sin. You will tell me about the sin. Yes, Ali Abbas. Sindhi biryani. Sindhi biryani. Good, Ali Abbas. Yes, Khushbaq. Unmute your mic, Khushbaq. Yes, Khushbaq, you will tell me about the Kashmir. Yes, well-known dishes of the Kashmir is, yes, Khushbaq. Hello, ma'am. Yes, but you tell me about the famous dishes of Kashmir. Yes, speak. जी बच्चे. Ma'am, ये gushtaba. Okay, Gushtaba. Yes. Chap, Yes. chap,
and Bakr Khani. Good, very good, all of you. Okay. Okay, बच्चे. Now we will move towards next topic. Turn your page, all of you. Turn your page. Take out page number 5. Hurry up. Shabash बच्चे. Take out page number 5. Today's topic is multicultural society and nationalism. What is meant by multicultural? Multicultural, mix up. ठीक है, in this chapter we have studied about different cultures in Pakistan. ठीक है, different provinces, different areas, ठीक है, different region के हिसाब से different cultures हैं. ठीक है, सिर्फ provincial हमारे पास नहीं है, different region भी हमारे पास हैं जहाँ का बिल्कुल culture बिल्कुल change होता है. So our कंट्री इज़ अ मल्टी कल्चर सोसाइटी. ठीक है, हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटी कौन से होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग एक जगह मिलजुल कर रहते हैं, हम उसको सोसाइटी कहते हैं. सो मल्टी कल्चर सोसाइटी. एंड नेशनलिज्म. नेशनलिज्म किसको कहते हैं? आपके जो कौम अपनी जो वतन के लिए मोहब्बत होती है, ठीक है, उसको हम नेशनलिज्म कहते हैं. Several different बच्चे, pencils should be in your hands because in this topic there are a lot of difficult words, so you have to write down the meaning. Clear? Several different cultures can coexist peacefully in a single society. It is called multicultural society. वो कहते हैं डिफरेंट कल्चर से बिलोंग लोग जो है बहुत खुशी के साथ, अमन के साथ, इत्तेफाक के साथ जब एक सोसाइटी में रहते हैं तो वी कॉल देम मल्टीकल्चर सोसाइटी. व्हाट वी कॉल देम? Multicultural society. When several cultures live in a single society with peace, love, so that society is called multicultural society. उस society को हम क्या कहते हैं? Multi. ठीक है, multi means different. तरह तरह की जो है हमारे पास कल्चर उसमें आते हैं. उस सोसाइटी वो जगह जहाँ पर लोग एक जगह पर मिलजुल कर रहते हैं, इट इज़ कॉल्ड सोसाइटी. So what is multicultural society? When different cultures live in a single society with the love, peace, it is called multicultural society. ठीक है, जहाँ पर different culture से belong लोग एक ही जगह पे इत्तेफाक और प्यार के साथ रह रहे होते हैं, उस सोसाइटी को हम क्या कहते हैं? Multicultural society. People living in a multicultural society communicate with each other. अब वो कह रहे हैं वो लोग जो कि मल्टीकल्चर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. कम्युनिकेट मतलब एक दूसरे के साथ इन टच होते हैं, मिलते जुलते हैं. राइट डाउन द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेट. कीप इन टच विद अदर्स यानी ख़बर देना, ताल्लुक़ रखना, एक दूसरे के साथ राब्ते में रहना, इस कॉल्ड कम्युनिकेट. यानी मल्टीकल्चर सोसाइटी के लोग एक दूसरे के साथ इन टच रहते हैं. ठीक है, सेम एज आप जिस अपनी स्ट्रीट को देखें, इन योर स्ट्रीट देयर विल बी पठान आल्सो, शहरी, मे बी देयर विल पंजाबी आल्सो, लेकिन आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हो. ठीक है, कभी खाना बेच दिया, कभी आके मिल लिया. ठीक है, तो ये क्या होता है, एक ही सोसाइटी पे हम डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं लेकिन हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इत्तेफाक से रह रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. मीन्स मेल जुल करना, एक दूसरे के साथ राब्ते में रहना. राइट डाउन द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेट. कीप इन टच विद अदर्स. राइट डाउन द मीनिंग. कीप इन टच विद अदर्स. ओके, डन. Okay. शेयरिंग आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस. ठीक है, और एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं. ठीक है, चाहे वो जिस चीज़ से रिलेटेड हो. जब इंसान कोई दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो ऑफकोर्स वो अपनी बातें जो हैं शेयर दूसरों के साथ करते हैं. तो कहते हैं वो एक सोसाइटी, मल्टीकल्चर सोसाइटी में लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और अपने आइडियाज़ और एक्सपीरियंसेस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बताते हैं, अपने कल्चर के बारे में बताते हैं. हमारे कल्चर में तो ऐसा होता है, हम लोग ये सेलिब्रेट भी करते हैं, उसमें बहुत मज़ा आता है. ठीक है, तो इस मल्टीकल्चर सोसाइटी में डिफरेंट कल्चर से बिलोंग लोग क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे के साथ आइडिया और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं. They also learn to live together in peace and harmony.
ठीक है, उनको ये भी है। अब ऐसा नहीं है कि हम कहें कि यहाँ इस सोसाइटी में या इस स्ट्रीट में सिर्फ पठानों ने रहना है या सिर्फ पंजाबियों ने रहना है, अगर एक दूसरे के इलाके में आ गए तो बंदूकें उठ जाएंगी या लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। नो, मल्टीकल्चरल सोसाइटी में एक दूसरे के साथ वो लिव टुगेदर, एक दूसरे के साथ रहते हैं, इत्तेफाक से रहते हैं, एंड हार्मोनी, इत्तेफाक के साथ, यूनिटी के साथ, ठीक है। तो मल्टीकल्चरल सोसाइटी, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ हार्मनी, यूनिटी, इत्तेफाक के साथ। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ हार्मनी, यूनिटी, इत्तेफाक के साथ। हार्मोनी, यूनिटी, इत्तेफाक। ओके, देन इट क्रिएट्स, और उसके साथ साथ क्या होता है, क्रिएट्स टॉलरेंस, इक्वलिटी एंड ह्यूमैनिटी अमंग देम। उनमें क्या क्या चीज़ आती हैं? टॉलरेंस का मतलब है एक दूसरे में बर्दाश्त करना। समटाइम्स क्या होता है, दूसरों की जो हैबिट्स होती हैं, ये वे ऑफ लिविंग जो होता है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा होता, बट मल्टीकल्चरल सोसाइटी में क्या है, हमने टॉलरेंस यानी उसको बर्दाश्त करना है, ठीक है। इक्वलिटी, सबको बराबर का हक होना चाहिए। एंड ह्यूमैनिटी मीन्स कि इंसानियत मतलब एक दूसरे के साथ काइंड होना चाहिए, ठीक है, अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। सो राइट डाउन द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस, इक्वलिटी एंड ह्यूमैनिटी। द मीनिंग ऑफ टॉलरेंस इज बर्दाश्त करना। The meaning of tolerance is बर्दाश्त। Equality means बराबरी, ठीक है, सेमनेस। Equality means बराबरी, Equality means बराबरी। Humanity का मतलब है इंसानियत, ठीक है, मैनकाइंड या काइंडनेस, ठीक है, अच्छे तरीके से ट्रीट करना, ठीक है, इंसानियत, मैनकाइंड, काइंडनेस। Humanity, mankind, kindness. Okay, done. Okay, then a multicultural society also help to discourage discrimination on the basis of race, culture and etc. अब मल्टीकल्चरल सोसाइटी में हमने क्या करना है, एक दूसरे को डिस्करेज नहीं करना, ठीक है। डिस्करेज मीन्स नापसंद करना, ठीक है, उसके जो उनका कल्चर होता है उसको नापसंद हमने नहीं करना। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, फ़र्क नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ठीक है, ज़ात, ठीक है। हम जैसे कहते हैं ना ये इस ज़ात से ताल्लुक़ है, ज़ात जो होती है, कोई पठान है, कोई पंजाबी है, ठीक है, सिंधी लोग भी हैं हमारे पास, दैन पठानों में भी डिफरेंट रेसेस हमारे पास मौजूद हैं। कोई खान होते हैं, कोई शिनवारी होते हैं, कोई खटक होते हैं, तो उसको हम रेस कहते हैं, ठीक है। एक रेस भागने वाला रेस होता है, ये जो है नस्ल वाला, ज़ात वाला रेस है। एंड कल्चर एंड एक्स्ट्रा। सो मल्टीकल्चरल सोसाइटी में हमने एक दूसरे को डिस्करेज नहीं करना। क्या नहीं करना? डिस्करेज नहीं करना। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ डिस्करेज, शो अप्रूवल, डिसअप्रूवल ऑफ, नापसंद करना। Yes, write down the meaning. Done. Discourage, show disapproval of, नापसंद करना. Then write down the meaning of discrimination, unequal treatment, तफरीक या फ़र्क. ठीक है, फ़र्क नहीं करना. ठीक है, ऐसा नहीं है एक को इम्पोर्टेंस हो और एक जो है दूसरे को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से हम ट्रीट ना कर रहे हो, तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता. ठीक है, hurry up, write down, I am waiting for you. Okay, done. People from multicultural society can easily assimilate into new culture anywhere in the world. Assimilate का मतलब है, write down the meaning.
एसिमिलेट का मतलब है बी सिमिलर, मिल जाना। सो वो कहते हैं मल्टी कल्चर सोसाइटी की एक ये अच्छी बात है कि ऐसे लोग जो मल्टी कल्चर सोसाइटी से लोग बिलोंग करते हैं, अगर वो किसी और कंट्री में जाते हैं तो वो उनके साथ अच्छे से मिल जुल लेते हैं, उनको कोई इशू नहीं होता उनके कल्चर से या किसी और चीज़ से, वो ईज़िली जो है एक दूसरे के साथ इन टच रहते हैं। यस जमीला, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन? यस जमीला, अनम्यूट योर माइक। Yes, Jamila. Unmute your mic. मैम ये कब जी बच्चे। भी मैं लिख रहे? नो बच्चे, राइट डाउन ऑन द बुक। ठीक है, ये वर्ड्स जो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए मैं यहाँ पर अंडरलाइन करती हूँ, आप इसी के ऊपर इसके मीनिंग लिख लो। अगर यहाँ स्पेस आपको नहीं हो रहा मिल रहा तो आप यहाँ पर भी साइड पर भी लिख सकते हो। ठीक है, राइट डाउन द मीनिंग ऑन द बुक, ये बुक के लिए मीनिंग है ताकि आपको ये टॉपिक समझ आ जाए। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स है ना, सो राइट डाउन ऑन द बुक। ओके गुड, सो राइट डाउन द मीनिंग। ठीक है, डन, एसिमिलेट, बिकम सिमिलर, मिल जाना। ओके डन। ओके, बिफोर गोइंग टू द नेशनलिज्म टॉपिक, मैं अगेन मल्टीकल्चरल सोसाइटी को एक्सप्लेन कर देती हूँ विद इन फ्यू लाइंस। ठीक है, कुछ फ्यू लाइंस में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी क्या होती है। ठीक है, मल्टीकल्चरल सोसाइटी इज़ दैट सोसाइटी इन विच डिफरेंट इज़ अ सिंगल सोसाइटी। ये सोसाइटी एक होती है बट हेयर डिफरेंट पीपल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स एंड लिव देयर विद पीस, with harmony, and there is equality, and they live in very lovely way। ठीक है, बहुत प्यार से वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो हमारे पास मल्टीकल्चरल सोसाइटी में लोग क्या होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी रहते हैं बट वो फाइट वगैरह नहीं करते, एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात मल्टीकल्चरल सोसाइटी की ये होती है कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी के लोग अगर कहीं और जगह पर किसी और कंट्री में मूव करें तो उनको दूसरी सोसाइटी में इन्वॉल्व होने के लिए कोई इशू नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी मल्टीकल्चरल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उसने डिफरेंट सोसाइटी के लोगों के साथ वो लाइफ स्पेंड की होती है, इसलिए वो जब वो किसी और कंट्री में जाते हैं तो उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें इन्वॉल्व होने में, उनके साथ कम्युनिकेट होने में उनको कोई इशू नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट इज़ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब है कौम परस्ती या आपको अपनी कंट्री से जो प्यार होता है। ठीक है, नेशनलिज्म इज़ द लव फॉर द कंट्री दैट यूनाइट्स अ नेशन। यूनाइट्स थी जोड़ता है। ठीक है, इत्तेफाक, यूनाइट्स मिलना। ठीक है, ये नेशन हम उस कौम को क्या करता है, जोड़े रखते हैं। जब आपको अपनी कंट्री से प्यार हो तो सब जो है एक दूसरे के साथ यूनाइट रहते हैं। Whatever the situation is, people will always support their own country। ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो, जैसे हमारी कंट्री में कोई भी जो है हम पर कोई भी मुसीबत आ जाए, फ्लूड वगैरह होता है, अर्थक्वेक वगैरह होता है, कोई भी इशू हो जाए तो क्या होता है, हम सब इत्तेफाक से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, हम एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कैसी भी सिचुएशन हो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when a huge earthquake jolted the northern part of Pakistan in 2005। ठीक है, 2005 में क्या हुआ था, अर्थक्वेक कहते हैं जिलजिले को। ठीक है, जोल्टेड का मतलब झटके देना, हिलाना। ठीक है, अर्थक्वेक के झटके मीन्स अर्थक्वेक बहुत तेज़ आया था। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ जोल्टेड, पुश फोर्सफुली, हिलाना यानी कि झटके आना। ठीक है, अर्थक्वेक जिलजिले को कहते हैं। तो कहे इन 2005 जब ये अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान में इन द नदरन साइड। ओके, राइट डाउन, डन। तो फिर क्या हुआ, द पीपल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री poured relief goods into the flood hit areas and helped the government with relief effort for the quick victims। ठीक है,
तो वो सारे ऑल ओवर द कंट्री यानी पूरे कंट्री के लोगों ने, यानी वो आया सिर्फ कहाँ पर था, अर्थक्वेक सिर्फ नदर साइड पर, लेकिन पूरी कंट्री के लोगों ने मिलकर उन लोगों के को सपोर्ट किया था. राइट डाउन द डिफिकल्ट मीनिंग्स. पोर्ट मीन्स निकालना, खारिज करना. लेट फ्लो. रिलीफ का मतलब है मदद या इमदाद भी हम कह सकते हैं. सपोर्ट प्रोवाइडेड टू नीडी. एंड द विक्टिम्स वन हु फॉल्स पे, कुर्बानी मजलूम. Done. Write down the meaning, students. Okay, students, our chapter is finished and I will give you the task also, but you have to buy your social learning book, social learning copy. Inshallah from the next class we will start the written work. ठीक है, हम अपना written work start करेंगे, so all of you must have your copies. Clear? And I am giving you the task. And the task is about, from this chapter you have to write down different culture of Pakistan. ठीक है, इस बुक में आपको डिफरेंट कल्चर हमने पढ़े हैं, उसमें जितना समझ आपको आया है आपने विद इन फ्यू लाइंस में आपने एक्सप्लेन करके मुझे सेंड करना है. इट्स योर टास्क, ये आपका होमवर्क है. ठीक है, आप उसमें उसका रिलीजन, कल्चर, ड्रेसेस, लैंग्वेजेस, हमने जितना सब कुछ फूड वगैरह पढ़ा है उसको शॉर्ट में, जितना शॉर्ट फॉर्म में आप वेल एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट्स गुड. ठीक है, एंड सेंड इट ऑन माई नंबर ऑल्सो एंड यू हैव टू बाय योर कॉपी. इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द रिटन वर्क. ठीक है, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.